Dear students, welcome to the channel MR Maths Academy. If you are not subscribed our channel, please subscribe the channel MR Maths Academy. Complex numbers lecture 3 में हम स्टडी करेंगे complex numbers and algebra of complex numbers. So let us see the complex number. Definition of complex number. A number of the form a plus ib or a plus bi, where ab belongs to R, I is equal to root minus 1 is called complex number. It is denoted by Z, and examples are 2 plus 3i, 5 minus 3i, and 1 plus I, etc. So dear students, this is the definition of complex number. The numbers of the form a plus ib or a plus bi, in which a and b are the real numbers and I is a imaginary unit which is equal to root minus 1. And the complex numbers are denoted by small z, and examples are 2 plus 3i, 5 minus 3i, 1 plus I, etc. So this is a complex number which is denoted by z, a plus ib. So complex number a plus ib is a sum of two parts, in which first part is called real part and second one is called imaginary part. So we can say complex number is a sum of real part and imaginary part. So z is equal to a plus ib is a complex number, and this is a sum of two parts. One is real part, in which a is a real number, and second जो part है इसमें imaginary unit involved है, therefore this is called imaginary part. So we can say complex number is a combination of real part and imaginary part. Real part is denoted by Re of z, or simply R of z, and imaginary part is denoted by Im of z or I of z. So ये a plus ib is a complex number है, in which a is a real part है and bi is a imaginary part है, because I is a imaginary unit. So first जो real part है, इस real part का symbolic form जो है उसको symbolic form में represent करने के लिए हम ये notations use करेंगे, Re of z या फिर R of z, और imaginary part को symbolic form में represent करने के लिए हम notation use करेंगे I of z, Im of z और I of z. And set of complex numbers is denoted by capital C. So this was the definition of complex number, and complex number is sum of the two parts, one is real part and second one is imaginary part. उसके हमने symbolic form देके real part और imaginary part को define करने के, और set of complex numbers को हम denote करेंगे capital C से. So here are the examples of complex number. First is a 3 plus 4i is a complex number, in which real part is 3 and imaginary part is 4i. 2 plus 7i is a complex number, in which real part is 2, imaginary part is 7i. 4 minus 5i, real part is 4, imaginary part is minus 5i. 7 minus 8i, real part is 7, imaginary part is minus 8i. 9, it is a complex number, or we can say 9 can be represented as complex number, in which real part is 9, and in this complex number imaginary part is absent, therefore imaginary part is denoted by 0 into I. 3i, in which real part is absent, so we denote real part as 0 and imaginary part is 3i. Minus 2 minus 3i, real part is minus 2, imaginary part is minus 3i.
Note, first a complex number whose real part is 0 is called purely imaginary number. For example, z is equal to 0 plus ib in which 0 is a रियल पार्ट है. रियल पार्ट जब 0 रहेगा सो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा हमको ib यानी प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेगा. सेकेंड, a complex number whose imaginary part is 0 is called purely real number. For example, z is equal to a plus 0i in which imaginary part is 0 है, so simplified form is a which is real. Therefore, this complex number is purely real number. A complex number whose both real part and imaginary part are 0 is called a zero complex number. For example, z is equal to 0 plus 0i in which 0 real part is 0, imaginary part is 0. Or we can say 0 can be expressed as a complex number as 0 plus 0i, and that is called zero complex number. Fourth one, a real part and imaginary part can't be combined to form a single term. For example, 7 plus 2i. Here 7 is a real part and 2i is a imaginary part. ये दोनों भी जो है different quantities है. So we can't real part and imaginary part to combine a single term. So it can't be equal to 9 or 9i. Algebra of complex number. So algebra of complex number. So dear student, algebra means कॉम्प्लेक्स नंबर एक कंसेप्ट है, इसका हमको अलजबरा देखना है. अलजबरा में जनरली अलजबरा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, लेकिन जब हम किसी कंसेप्ट का अलजबरा देखते हैं दैट मीन्स उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके प्रॉपर्टीज और उसके ऑपरेशंस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं. सो फर्स्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको हम देखते हैं कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर रियल पार्ट्स आर इक्वल and their imaginary parts are equal. For example, if a plus ib is a complex number and c plus di is second complex number, these are equal. So first complex number a plus bi is equal to second complex number c plus di. These are yani two complex numbers are equal if their real parts equal, that is a and c equal रहेंगे and their imaginary part bi and di equal रहेंगे. bi और di equal है और इसमें i जो है ना इक्वालिटी के बोथ साइड में अगर सिमिलर क्वांटिटी रहेंगी तो ड्रॉप हो जाती है, इसलिए हम bi इक्वल टू di लिखने के बजाय हम लिखेंगे सिंपली b इक्वल टू d. सो रियल पार्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल रहेंगे व्हेन their real parts equal and their imaginary parts equal. ये जनरल फॉर्म में हमने देखा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म में थे, सो उनके रियल पार्ट्स a और c इक्वल रहेंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स b एंड d इक्वल्स रहेंगे. अब एग्जांपल हम एक पर्टिकुलर के लिए देखते हैं कि इफ a प्लस ib इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इक्वल टू सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस di. So first complex number जनरल फॉर्म में और सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर पर्टिकुलर फॉर्म में एंड बोथ आर इक्वल है. when both are equal then a and phi equals रहेंगे, then real parts a and a and phi equals रहेंगे. So we get a is equal to 5 and their imaginary parts b और 4 जो equals रहेंगे. So जनरल फॉर्म में ये एग्जांपल थी और ये एग्जांपल एक पर्टिकुलर फॉर्म में, उसमें एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा जनरल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल है. देन देयर रियल पार्ट्स a और phi इक्वल्स रहेंगे एंड देयर इमेजिनरी पार्ट्स b एंड 4 इक्वल्स रहेंगे. सो दिस इज द इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नेक्स्ट, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इफ z is equal to a plus ib is a complex number, then a minus ib is called conjugate of complex number and it is denoted by z bar. a plus ib is a complex number है, then a minus ib is called its conjugate of its conjugate. That means
कॉम्प्लेक्स नंबर में जो इमेजिनरी पार्ट रहता है उसके अगर हमने साइन को चेंज करेंगे so that will be conjugate of that complex number. For example, z is equal to a plus ib is a complex number है, then its conjugate is denoted by z bar और यहाँ पर imaginary part जो है ना प्लस में तो वहाँ पर हम नेगेटिव सिंबल यूज करें. So a minus ib is a conjugate of a plus ib. Z is equal to 4 plus 5i is a complex number. So its conjugate z bar is equal to 4 minus 5i. Next है operations on complex numbers. तो first operation है addition, second subtraction, third multiplication and fourth one is division. So let us see one by one. So first is addition of two complex numbers. When adding complex numbers, combine like terms, add real parts and imaginary parts separately. So method है कि when we add two complex number, तो first step क्या रहेगी, combine like terms. Second step रहेगी add real parts and imaginary parts separately. For example, 3 plus 4i and 2 plus 5i. These are two complex numbers है, उनका हम addition ले रहे हैं. So addition के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनके real like terms को अरेंज करेंगे, मतलब रियल पार्ट्स को सेपरेटली अरेंज करेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेटली अरेंज करेंगे. सो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है रियल पार्ट है 3, सेकंड में है 2. ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, इनको सेपरेटली ऐड करना है. सो 3 प्लस 2. उसके बाद इमेजिनरी पार्ट्स, फर्स्ट में है 4i एंड सेकंड में है 5i. सो ये दोनों को सेपरेटली अरेंज करेंगे. अब उनके बाद सेकंड स्टेप एडिशन. सो रियल पार्ट्स 3 प्लस 2, 3 और 2 का एडिशन 3 प्लस 2 इज 5 एंड 4i 5i. इमेजिनरी पार्ट से दोनों की एडिशन 9i. तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट्स को सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है, रियल पार्ट का एडिशन, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन. सेकंड सब्ट्रैक्शन, ये भी सिमिलर टू एडिशन ही है कि व्हेन सब्ट्रैक्टिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंबाइन लाइक टर्म्स, subtract real part and imaginary parts separately. For example, these are the two complex number, उनका हमको डिफरेंस लेना है. सो रियल पार्ट्स को हम सेपरेट करें. 5 टू रियल पार्ट्स हैं, इनको हमने सेपरेट किया. 7i 5i इमेजिनरी पार्ट्स है, इनका सेपरेटली डिफरेंस रहेगा, तो इनको सेपरेटली जो है ना एक ब्रैकेट में अरेंज करेंगे. सो रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट. अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं. 5 minus 2 and 7i minus 5i which is equal to 3 plus 2i. Multiplication. When multiplying complex numbers, we use the same procedure as multiplying polynomials. So regular as usual manner में जैसे हम 2 polynomials को multiply करते हैं, उसी तरह product of complex numbers रहेगा. For example, 3 plus 2i 2 plus 4i, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, मल्टीप्लिकेशन लेना है, सब मल्टीप्लाई करेंगे यूजुअल मैनर, यानी 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 4i को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2i से 2 को और 2i से 4i को मल्टीप्लाई करते हैं. सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन. उसके बाद ये 6 एज इट इज रहेगा. 12i 4i सिमिलर टर्म्स है, लाइक टर्म्स है, दोनों को ऐड कर लेंगे. सो दिस इज 16i. और लास्ट टर्म 8i स्क्वायर है, इसमें i स्क्वायर की वैल्यू को पुट करेंगे. वी नो i स्क्वायर इज -1, सो 8 इंटू -1. तो 6 प्लस 16i और ये -8 हो गया. i है मतलब ये इमेजिनरी यूनिट है, 16i इमेजिनरी पार्ट है, 6 और -8 ये रियल पार्ट्स है, तो इनको ऐड कर लेंगे सेपरेटली. 6 और -8 का एडिशन मिलेगा -2. सो -2 और ये 16i एज इट इज. सो -2 प्लस 16i. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी हमने जैसे देखा था एडिशन सब्ट्रैक्शन. एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर. Subtraction of two complex number is again complex number. Similarly, product of two complex number is again complex number. Complex number means ये real part है, ये imaginary part है, therefore it is complex number.
Last is division. When dividing complex numbers, we rationalize the denominator by multiplying both numerator and denominator by conjugate of the denominator. For example, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है 2 + 3i 1 - i, इनका डिवीजन लेना है. सो डिवीजन के लिए मेथड क्या होगी, एक स्टेप नहीं न्यू रहेगी कि डिनोमिनेटर को चूज करना है. डिनोमिनेटर इज 1 - i, सो उसका कॉन्जुगेट फॉर्म करते हैं. कॉन्जुगेट के लिए इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करते हैं. इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करेंगे, सो वी गेट 1 + i. सो 1 + i से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं. तो डिवीजन के लिए मेथड क्या है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे. नाउ दिस इज फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन, सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस. सो न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट. ये न्यूमरेटर्स का प्रोडक्ट आ गया 2 × 1 2 × i, 3i × 1 3i × i. और डिनोमिनेटर जो है ये डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट लेना है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टाइप में a - b a + b के फॉर्म में. सो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर. सो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस i का स्क्वायर i स्क्वायर. तो उसको सिंप्लीफाई करना है, 2 एज इट इज, i + 3i 4i, i स्क्वायर की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट करते हैं. सो ये -3 हो गया. डिनोमिनेटर में ये 1 और i स्क्वायर इस -1 है, सो ये +1 हो जाएगा. सो 2 और 3 का डिफरेंस ले लेते हैं. सो -1, डिनोमिनेटर 1 + 2 इज 2 रहेगा, 4i एज इट इज. सो ये 2 और -3 का डिफरेंस -1, 4i एज इट इज, 1 + 1 इज 2. उसके बाद लास्ट स्टेप क्या रहेगी, इसको स्प्लिट करना है. न्यूमरेटर पे 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में सिंगल. सो -1 डिवाइड बाय 2, 4i डिवाइड बाय 2. So -1 divided by 2 is -half, 4i divided by 2 is 2i. So ये i इन्वॉल्व है, मतलब ये सेकेंड क्वांटिटी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इसमें i इन्वॉल्व है. ये i फिर ये मीन्स रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर is again a complex number. Let us see the properties of addition of complex numbers. If z1, z2, z3 are complex numbers, then addition of commutative. Addition is commutative. Commutative लॉ क्या होता है कि दो क्वांटिटी है, उनका एडिशन के लिए देखना है. सो दो क्वांटिटी लेंगे, उनका एडिशन लेंगे. जैसे हमने दो क्वांटिटीज हमारे पास अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उनका एडिशन लेंगे. फिर उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स करके उसका एडिशन लेंगे, यानी z2 + z1, और चेक करेंगे दोनों इक्वल आ रहे हैं. सो एडिशन इज कॉम्यूटेटिव है, दैट मीन्स z1 + z2 की वैल्यू और z2 + z1 की वैल्यू इक्वल आएगी. देयरफॉर कॉम्यूटेटिव लॉ इज z1 + z2 = z2 + z1. दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. नेक्स्ट एडिशन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव लॉ, इसमें 3 क्वांटिटीज और एक ऑपरेशन यूज होता है. सो यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर और एक एडिशन वाला ऑपरेशन यूज करेंगे. सो 3 क्वांटिटी लिए हमने फर्स्ट 2 को ऐड किया और उसमें थर्ड को ऐड करेंगे. उसके बाद हम लास्ट 2 को ऐड करेंगे, लास्ट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, और उसमें फर्स्ट नंबर ऐड करेंगे और दोनों की वैल्यूज को चेक करेंगे, z1 + z2 + z3 और z1 + z2 + z3 की वैल्यू. सो लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये क्वांटिटी की वैल्यू और ये क्वांटिटी की वैल्यू इक्वल आएगी. एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, सॉरी एडिशन इज एसोसिएटिव. एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव मतलब एडिशन आइडेंटिटी के लिए हमको डिफाइन करना है. जनरल फॉर्म में पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी पे जब इसको ऐड करते हैं तो उस क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी रहेगा. फॉर एग्जांपल 2 + 0 = 2. 2 जो एक क्वांटिटी थी, उसमें हमने 0 को ऐड किया है. तो 0 को ऐड करने में, 0 को जब हम किसी भी क्वांटिटी में ऐड करते हैं तब वो उस क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी 2 एज इट इज रहेगा. सिमिलरली 5 + 0 is 5, 7 + 0 = 7. So we can say 0 is a identity element for addition. तो सेम हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखना है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जब 0 को ऐड करते हैं और उसका ऑर्डर चेंज करके भी अगर हम 0 को ऐड करते हैं तब भी वो इक्वल टू ओरिजिनल
कॉम्प्लेक्स नंबर z ही रहेगा। सो z प्लस 0 इक्वल टू z ही रहेगा और 0 प्लस z इज इक्वल टू ऑल्सो z रहेगा। मतलब हियर 0 इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। कॉन्जुगेट ऑफ एडिशन, तो z1 प्लस z2 तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन और उसका कॉन्जुगेट रहेगा विच इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, यानी sum of conjugate of sum of the complex numbers is equal to sum of their conjugates. Next, properties of multiplication of complex numbers. जैसे हमने एडिशन के लिए देखा था सेम जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सिर्फ ऑपरेशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा। So if z1, z2 and z3 are complex numbers, then multiplication is commutative. So multiplication is commutative यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे z1, z2 उनका प्रोडक्ट लेंगे, उसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर उनके इनके ऑर्डर चेंज करके इनका प्रोडक्ट लेंगे z2, z1, तो z1 इंटू z2 और z2 इंटू z1 इक्वल्स रहेंगे। Then we say the multiplication is commutative. Multiplication is associative, यानी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर और एक मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन यूज करेंगे। टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1, z2 का प्रोडक्ट विथ z3 इज इक्वल टू लास्ट टू वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट विथ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव कब रहेगा कि फर्स्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट विथ z3 इज इक्वल टू z2 एंड z3 का प्रोडक्ट विथ z1 इक्वल आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन यूज करना है और आइडेंटिटी के लिए। अभी हमने देखा आइडेंटिटी किसको कहेंगे कि किसी भी ऑपरेशन के साथ जब हम किसी भी क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के साथ जो है ना कोई एलिमेंट यूज करते हैं तो उस एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो मल्टीप्लिकेशन यूज करना है, सो मल्टीप्लिकेशन हमारा ऑपरेशन रहेगा, तो उस किसी भी क्वांटिटी के ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो उस क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ऑपरेशन ये मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन यूज कर रहे हैं और क्वांटिटी जो हमने यूज किया वो 2 था। इस 2 के ऊपर जो है ना हमने एक एलिमेंट को अप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन के साथ। 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तब उस क्वांटिटी पर कोई जो है इफेक्ट नहीं होता है। सो 2 इंटू 1 इज 2 ही रहेगा, 5 इंटू 1 इज 5 है एंड 7 इंटू 1 इज 7 है। सो वी कैन से दिस 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो सिमिलरली फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, यानी 1 is a identity element for multiplication, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी सेम ही रहेगा, यानी z1 इंटू 1 एंड 1 इंटू z इज इक्वल टू z ही रहेगा। कॉन्जुगेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कॉन्जुगेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन और उसका कॉन्जुगेट, यानी z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इनटू सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, यानी z1 कॉन्जुगेट। सो वी कैन से कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉन्जुगेट्स। एंड लास्ट वन इज मल्टीप्लिकेटिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव में हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स यूज करते हैं और 2 ऑपरेशंस यूज करेंगे। यहाँ पर हम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर और 2 ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। So z1 into z2 plus z3 is equal to, ये सिमिलर टू प्रोडक्ट है, z1 into z2 plus z1 into z3। तो z1, z2, z3 3 ऑपरेशंस, 3 एलिमेंट्स, 3 क्वांटिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज किया हमने, 2 ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को यूज किया। तो z1 into z2 plus z3 का जो सिंप्लीफिकेशन आएगा वो क्या मिलेगा हमको, z1 into z3 plus z1 into z3। दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी लेफ्ट से हम राइट की तरफ अप्रोच हो रहे हैं। और नेक्स्ट है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा,
इसको कॉमन लेते हैं। ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसमें से हमने कॉमन लिया है Z1 को, सबको लेफ्ट हैंड राइट इसका जो है ना ये राइट साइड हमको मिलेगा। या फिर इसको हमके ऑर्डर को चेंज करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। Z1 को कॉमन लेंगे तो आपको ये वाली क्वांटिटी मिलेगी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट Z1 मिलेगा। तो these are the लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी लेफ्ट से राइट को ऑब्टेन करना और राइट से लेफ्ट को। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है 1/i, मतलब i से इमेजिनरी यूनिट है और ये रेसिप्रोकल ऑफ इमेजिनरी यूनिट है। सो रेसिप्रोकल ऑफ इमेजिनरी यूनिट को सॉल्व करना है हमको, और डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी यूनिट है उसका पावर ऑड है, तो उसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। उसमें फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि जब रेसिप्रोकल ऑफ इमेजिनरी यूनिट रहेगा और उसका डिनोमिनेटर का जो पावर ऑड रहेगा तो उसको हम इवन में कन्वर्ट करते हैं। सो इवन में कन्वर्ट करने की टेक्निक जो है इसको i से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन से न्यूमरेटर का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, i into 1 is i into i is i square। नाउ वी नो i square की वैल्यू पुट करते हैं -1, सो माइनस i डिवाइड बाय -1 is -i। सो हियर 1/, ये फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड में 1/i है, इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी यूनिट विथ ऑड पावर है। सो यहाँ पर डायरेक्टली हम 1 की वैल्यू को पुट करेंगे। 1 क्या है, 1 की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होती है, जैसे वी नो i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस i से इमेजिनरी यूनिट है, सो i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो i इज इक्वल टू i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। सो यहाँ से हम 1 की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, -i स्क्वायर मिल सकता है, और यहाँ से i कैंसिल कर देंगे, सो मिलेगा -i। सो ये अनदर जो है ना सिंप्लीफिकेशन है। सो फर्स्ट वाला जो क्वांटिटी थी इसमें ये 1/i ये रेसिप्रोकल ऑफ इमेजिनरी यूनिट है विथ ऑड पावर, उसको हमने इवन पावर में कन्वर्ट किया है। ये इसमें i जो है ऑड पावर है और यहाँ पर इवन पावर में कन्वर्ट हो गया। सो ऑड को इवन में कन्वर्ट करना है तो ये टेक्निक क्या रहेगी, इसको i से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं। So this is the method to convert odd power of I to even power of I in denominator. तो ये टेक्निक हम यूज करना है, कब यूज करेंगे, जब 1/, रेसिप्रोकल ऑफ इमेजिनरी यूनिट रहेगा विथ ऑड पावर तो उसको इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग I एंड डिवाइडिंग बाय I, फिर i स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 1/a plus ib. a plus ib is complex number, so 1/a plus ib is a reciprocal of complex number। तो रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास मेथड क्या रहेगा, सो डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जैसे मेथड से सॉल्व करते हैं उसी तरह 1/, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करें, यानी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे, उससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। सो डिनोमिनेटर इज a plus ib, its conjugate is a minus ib, so dividing and multiplying by a minus ib। न्यूमिनेटर्स का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट, सो न्यूमिनेटर्स का प्रोडक्ट एज इट इज a minus ib रहेगा, डिनोमिनेटर a minus b a plus b के फॉर्म में, तो फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। सो ये न्यूमिनेटर एज इट इज, ये फर्स्ट का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर i स्क्वायर b स्क्वायर, यूजिंग द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर इज -1, सो ये +1 हो जाएगा। सो न्यूमरेटर इज a माइनस ib, i है मतलब इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रियल का स्क्वायर प्लस रियल का स्क्वायर है, तो इसको हम वन क्वांटिटी ट्रीट करेंगे डिनोमिनेटर को और इसको स्प्लिट करते हैं। सो a डिवाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस i इंटू b डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। So this is the simplified form of given type. So given जो type था वो था 1/, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये टाइप है
कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आई इन्वॉल्व है, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है। सो स्टार्ट में ये था, स्टार्ट का जो गिवन पार्ट था वो था 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ, यानी रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था, और ये हमने इसको रिड्यूस किया है कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो दिस इज द टेक्निक टू कन्वर्ट रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये लास्ट के दो जो प्रॉपर्टीज है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1 अपॉन यानी रेसिप्रोकल ऑफ इमेजिनरी यूनिट मिलेगा तो उसको सिंप्लीफाई करना ये मेथड से, और रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में हम रिड्यूस करेंगे इस टेक्निक को यूज करते हुए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।